चाललं कसं करणार तुला. हां अभिजित लाईव्ह तर आलोय ना मी. दिसतंय तरी मला लाईव्ह. बोलू आता सुरू. ओके याच्यानंतर काय करायचं सांगशील. ओके ठीक. हॅलो एव्हरीवन, माय सेल्फ निवृत्ती आव्हाड. सो दिस इयर आय हॅव गॉट रँक ऑफ 166. Previously currently I'm working with Indian Revenue Service Income Tax. I am 2017 batch IRS IT officer. So this was my 6th attempt. After IRS also I was trying, and this was my 5th interview in a row. So finally I have got rank in 6th attempt, which was desired by me. Right? So this is brief about me. I think I will not focus more on that. I will focus on what kind of questions you are asking. I will focus more on that. Previously, like before that, those people who are attending prelim, they should focus on now only revision, do analysis of previous year papers, like 2-3 previous year paper, 18, 19, 20 paper, and do not ignore CSAT, because if you see the score of CSAT today, I think prelims marks have been, like mark sheets are there in the public domain. Everyone knows that CSAT actually everyone's score has drastically reduced. Even I used to get like 120, 130 easily without preparation. Now I have got some 80, 85. So that itself shows that कि CSAT, if you are not preparing, बहुत कम लोग फिर ये हो रहे हैं कि फेल हो सकते हैं. इसलिए आप CSAT को इग्नोर नहीं करना. जितनी आप पढ़ाई जीएस की करते हो उससे 10% भी आप CSAT करते नहीं हो. और लेकिन CSAT उतना ही क्रूशियल फैक्टर डे बाय डे होते जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी जितने आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप 2 घंटे में मैनेज नहीं कर पाते, फिर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं, और आपको सपोज जीएस टफ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको वो चीज़ें भी हॉन्ट करती रहती है. तो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नॉट निग्लेक्ट CSAT. दैट इज द फर्स्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन. आई थिंक इट्स नॉट टाइम टू शेयर बुक लिस्ट. आई थिंक अभिजीत विल शेयर बुक लिस्ट आफ्टरवर्ड्स. Everyone knows standard books, NCERTs, right from Gully to Delhi, everyone is going to read same books. But how to make it little different? How your preparation is going to be different compared to others? That is very important. So you should understand that this process calls for persistence, patience, hard work, and smartness. So what is the smart work? Smart work is nothing but combination of hard work plus smartness. You should not be doing donkey work. आपको पता है लक्ष्मीकांत इज ऑलरेडी अ वेरी गुड बुक, उसके भी आप नोट्स निकालेगा तो इसको डॉन की वर्क कहेंगे. डोंट बिकम अ जोरॉक्स मशीन. आप इससे अच्छा क्या करो, लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो. एज मेनी रिविजन एज पॉसिबल, दैट विल बी बेटर. सो कौन से चीज़ के नोट्स निकालने और कौन से नहीं, ये आपको पता होना चाहिए. डेली हिंदू के नोट्स निकालना इतना इंपॉर्टेंट है. वाई? यू शुड डेली रीड द हिंदू, एंड इफ एनी आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स और मेंस, then you should prepare notes of that. Otherwise there are so many current affair booklets available, whether weekly or monthly. Vision IS, GS Core, Insight IS, and so many classes, Forum IS, n number of classes are available. So you have to be very smart in your preparation, that the kind of information which is available in the domain, or spoon feeding जितनी हो रही है आप उसको कैपिटलाइज करो. उससे अपना हर टॉपिक के अपने नोट्स साउंड बनाओ. कोई भी सिंपल टॉपिक हो उसके लिए आप 2-3 रिसोर्सेज रेफर कर रहे हो तो उसके जो अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, सपोज आप एक विजन रेफर कर रहे हो, फिर बाकी सपोज इनसाइड से आपको कोई एडिशनल पॉइंट मिल रहा है, तो मेक इट अ पॉइंट की वो नोट्स में आपके इंक्लूड होना चाहिए. तो इससे क्या फायदा होगा? योर आंसर्स विल बी मल्टी डिमेंशनल, योर आंसर्स विल बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स, एंड दे विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स वन टू गेट मेक्स एलिजिबल टू गेट मोर स्कोर इन GS. Please tell us strategy without coaching. Yes, I am the person who has done no coaching. Like at least only I have done joint test series for prelims, test series for mains, and interview के लिए कोई भी mock week ले लेते हैं. But before that, coaching must नहीं है. लेकिन those people who can afford, and those who feel that I am coming from a very different background, और मेरी concepts इतनी clear नहीं, मैंने NCERT भी पढ़ाने और मुझे पता ही नहीं, I am not able to प्रिपेयर विथ फुल फोर्स और ट्रैक पे नहीं है, तो उस काम के लिए कोचिंग इज वेरी गुड इन द सेंस दैट दे विल कीप यू ऑन द ट्रैक. They will able to channelize your energy in the right direction. So in that respect, coaching will simplify your effort. If coaching is going to complicate your preparation, then that coaching is not of use for you people. My optional for this attempt was anthropology.
Hindu or Indian Express, definitely both are equally good. Those who are good in English or those who are able to understand the Hindu in very first reading, go for Hindu. बट लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के कुछ पेजेस है, लाइक आइडियाज पेज होता है, एक्सप्लेन पेज होता है, दे आर एब्सोल्युटली प्लेजर टू रीड. सो इंडियन एक्सप्रेस हैज सर्टेन इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. तो मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है प्रीलिम के एंगल से, बट लेकिन जो ज़्यादा एनालिसिस है, कोई स्कीम का होगा, कोई भी IR का आर्टिकल होगा, श्रीरंगराजन सर का जो आर्टिकल आता है इंडियन एक्सप्रेस में, दैट इज वर्थ रीडिंग. हिंदू में भी आता है, सुहासिनी हैदर, सो मेनी थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल पीपल विल बी राइटिंग आर्टिकल. सो वो आर्टिकल आप सिलेक्टिवली पढ़ लीजिए, लेकिन एक न्यूज़पेपर आप रख लीजिए. मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियंस विल स्टडी द हिंदू. हम नॉर्थ इंडिया वाले एक्सप्रेस आसान भी है समझने में, तो वो पढ़ लेते हैं. लेकिन कोई भी पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज एट द एंड करंट अफेयर का आप मंथली पढ़ लोगे तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका. करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी, एक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और एट द एंड ऑफ द मंथ एक बुकलेट से आप नोट्स बना दीजिए बस. हाउ टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स, एज सच देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर एथिक्स. कोई भी एक बेसिक बुक से एथिक्स के आप क्या कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो. सेकंड ARC का एक एथिक्स पे रिपोर्ट है, वो पढ़ सकते हो. उसके बाद बस केस स्टडीज कलेक्ट कर लो न्यूज़पेपर से. कोई भी लाइक सोनू सूद अच्छा काम कर रहा है तो कौन से इसमें डाल सकते हैं. इफ सम कलेक्टर इज डूइंग ग्रेट वर्क, तो इन विच क्वालिटी, वेदर इंटीग्रिटी, लीडरशिप, प्रोबिटी, उसमें डालना है. तो आप ये और बस ये करंट का करना है बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं. एंड आई फील दैट फॉर एथिक्स टॉपर्स के भी पेपर आप देख सकते हो. एनी मंथली मैगजीन, आई फील विजन IAS इज गुड. हाउ टू स्टडी NCERT, आपको वीडियो भी बहुत अवेलेबल है, लेकिन बेसिक एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी है. कॉलेज से कैसे शुरू कर सकते हैं, डेली 3-4 घंटे आप निकालना शुरू कर दीजिए अभी से. स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और स्टार्ट रीडिंग बेसिक NCERTs ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. इनिशियली 2-3 मंथ्स यू विल टेक टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रोसेस ऑफ UPSC. NCERT क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, वो पढ़ने में पता चलेगा. इन अ वेरी फर्स्ट डे लोगों का आंसर राइटिंग भी करनी है, ऑप्शनल भी समझना नहीं. गो ग्रेजुअली, एंजॉय द प्रोसेस. पहले ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आप पूरा NCERT बेसिक पढ़ लो. आपको ज्योग्राफी पसंद है, आपको पॉल साइंस पसंद है, आपको सोशियो पसंद है, एंथ्रो पसंद है, ये करने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए बुक्स के साथ, NCERT बेसिक लेवल के बुक्स. देन टेक अ ऑप्शनल, और उसके बाद वो फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर एवरीवन. व्हाट इज कॉमन, start with NCERTs, then do it from standard books like Lakshmikant, Spectrum and all that. After that, start reading newspaper from the perspective of value addition, that how this syllabus is linked to this. Sociology versus anthropology, I have given both the options. Like in previous attempts I was having socio as my optional. This attempt I took anthropology as optional. So I will just differentiate. Socio is very subjective, it's very easy to understand, while in case of anthropology it's being little technical, like physical anthropology, genetics, ये वाला जो part है, that makes anthropology little objective. But nowadays even paper of anthropology is mixed. आपको कोई advantage नहीं कि सोशो कल्चरली सिलेक्ट कर सकते हो, फिजिकल ऐसे नहीं. इट्स अ मिक्स ब्रीड ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो मुझे लगता है एंथ्रो में जिसका थोड़ा रोट लर्निंग अच्छा है और जिसको याद करने में आसान है, दे कैन गो फॉर एंथ्रो. बाकी जिनको एनालिटिकल और सब्जेक्टिव लिखने में मजा आता है, दे कैन गो फॉर सोशो. Zoology optional is good if you are having graduation and post graduation in zoology. PSR is equally good. If you see this year's result, it's very good optional. Online coaching भी ले सकते हो. Now in the era of pandemic, everyone has to adapt to the online mode of learning. If you can afford and if you find that the teacher is good, then go for online also, no issues. Mathematics has always been a great optional in UPSC, but थोड़ा कोचिंग और कंटेंट का इशू हो सकता है मैथमेटिक्स में, लेकिन हो सकता है. लॉ ऑप्शनल इज गुड फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग लॉ एज देयर बैकग्राउंड. क्लास 6 की NCERT से शुरू कर सकते हैं आप. जूलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे ऑप्शनल आप कब ले सकते हैं, जब आपका बैकग्राउंड है. बाकी अदर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक इन, मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, मैंने अच्छे से क्या बोल सकते कॉन्सोलिडेट नहीं किया अपना कंटेंट, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि आंसर राइटिंग नहीं किया. ऑप्शनल के नोट्स नहीं थे, खुद की आंसर राइटिंग. आई वाज लिटिल लेजी इन माय प्रिपरेशन, आई फील. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट आई वाज मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स. PubAD is a very good optional. Time management strategy, 2 hours for newspaper, 6 hours for AD core subject, again 2-4 hours for your optional. ऐसा आपका होना चाहिए.
डेली स्ट्रैटेजी मेरी यही, एक न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है और कोई भी बुक जो स्टैंडर्ड बुक से बहुत दिन हो गए रिवाइज नहीं हुआ तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई, बहुत कम रिसोर्सेज पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ो कि उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप क्लियर कर सकते हो। आई थिंक एवरीवन हैज सीन दिस ईयर्स कट ऑफ। आप देख लो 92 जनरल का कट ऑफ लगा है, 89 से ओबीसी का है, 77 ईडब्ल्यूएस। आपको इससे पता चल रहा है कि यू हैव टू जस्ट गेट 45 to 50 क्वेश्चंस करेक्ट टू क्लियर द प्रीलिम। दैट इटसेल्फ शोज कि आपको कैसा प्रिपरेशन करना है। आपको बहुत कॉन्शियसली पढ़ना है। 70-80 क्वेश्चन भी आप सही करके आ जाओगे तो 70-80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो उसमें से आपके 50-55 सही हो जाएंगे। तो कट ऑफ इतना लगने वाला नहीं है। मेरा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी था। आई थिंक व्हाट्स योर मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? हर एक का इंडिविजुअल का अलग मोटिवेशन होना चाहिए और वो मोटिवेशन आपको पूरे प्रिपरेशन में गाइड करेगा। हिंदी लिटरेचर इज गुड सब्जेक्ट, बट इसमें क्या है ना, आपको स्टडी मटेरियल अच्छा होगा तो इट्स अ गुड सब्जेक्ट। जॉब के साथ आप प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं। कितने लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, एक मेंटल स्टेबिलिटी आती है, आपके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है, तो उसके साथ आपको फायदा ही हो जाता है। माई मीडियम वॉज इंग्लिश। साइकोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन, इट्स वेरी प्रिसाइज सब्जेक्ट एंड कंटेंट भी, स्टडी मटेरियल भी अच्छा है। एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रैटेजी आई विल शेयर इन डेप्थ ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बट मुझे एक जो लगता है कि एंथ्रो में जिसके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे उसको क्लियर करना बहुत आसान है। आप वैसे प्रीवियस टाइप मत जाओ कि भाई सब सिलेबस से आने वाला है। आजकल थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सब एंथ्रो के लिए बेसिक बुक्स लाइक जनरल एंथ्रोपोलॉजी बाई माजिद हुसैन और एम्बर एंड एम्बर, ऐसे बुक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने। आप बस कोई स्टैंडर्ड बुक है जो है, अभी बसमे सर का बुक बहुत अच्छा है, अक्षय जैन सर का बुक बहुत अच्छा है, लेकिन वो बुक कब करो आप? पहले आप रेफरेंस टाइप बुक पीनाथ पढ़ लो, एम्बर एंड एम्बर पढ़ लो, उसके बाद आप कोई भी नोट्स पढ़ लो। उसके बाद दिस बुक्स आर गुड फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको पहले कंटेंट या फॉर्डर मटेरियल कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आप आंसर कैसे करना है, कौन से डायग्राम निकालना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए वो बुक्स दे आर गुड। विच ऑप्शनल इज बेस्ट? नो ऑप्शनल इज बेस्ट, नो ऑप्शनल इज बैड। आपको ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना चाहिए और ऑप्शनल का स्टडी मटेरियल अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। और मुझे और जो लगता है कि ऑप्शनल स्कोरिंग भी होना चाहिए। आप रिसेंट ट्रेंड भी देख लेना। ये 2-3 फैक्टर के बेसिस पे आप यू कैन सिलेक्ट योर ऑप्शनल। हिस्ट्री एज ऑप्शनल इज रियली गुड, इट्स वेरी लेंथी एंड कॉम्प्रिहेंसिव, बट इट्स गुड ऑप्शनल। फॉर बिगिनर स्ट्रैटेजी इज दैट स्टार्ट ग्रेजुअली बट बी कंसिस्टेंट इन योर। 2 घंटे दे दो लेकिन इनिशियली आप पढ़ लो। जब फाइनल ईयर में जाओगे तो प्रिपेयर फुल फ्लेज्ड फॉर योर लास्ट अटेम्प्ट। व्हाट इज द स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी यही बताया मैंने। आप लक्ष्मीकांत के नोट निकालोगे तो आप पागल हो। वो बुक इटसेल्फ इज अ नोट्स। स्पेक्ट्रम के नोट्स निकाले आप पागल हो। उससे अच्छा क्या है? ज्योग्राफी आपको लग रहा है कि भाई रिवर देखनी है, उसके ट्रिब्यूटरीज देखने हैं, नेशनल पार्क देखना है, उसकी लिस्ट बना के रखो। दैट इज स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बस पूरा बुक लिखना, डोंट रेप्लिकेट द होल बुक और डोंट बिकम अ जोराक्स मशीन, वही स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और टाइम अच्छे से मैनेज कर लेना। इंटरनेट इज अ गुड थिंग बट इट्स अ डबल एजेड वेपन। आप कितने सही से उसको यूज करते हो उस पर भी डिपेंड होता है। एग्री इंजीनियरिंग आई एम नॉट श्योर ऑप्शनल है कि नहीं। बुक्स फॉर सोशो ऑप्शनल, हरलम्बस, एसेंशियल सोशियोलॉजी और पेपर 2 के लिए नदीम हसनैन। ये 2-3 बुक्स है आपके। और देर आर सो मेनी नोट्स अवेलेबल। विकास रंजन सर के नोट्स आर गुड, वाजराम सर के नोट्स दे आर गुड। सो आप जा सकते हो, लेकिन पहले 3-4 बेसिक बुक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। Detailed strategy of social and anthropology I will put on a blog or put on some group, so you will definitely get my detailed strategy with book list. CSAT strategy. What is CSAT strategy? First focus on your strong area. If you are good in quant, start solving quant. If you are good in RC, start with English passages and try to solve at least 50 to 60 questions so that if there has to be certain clearance. Otherwise बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट 10 दिन में आप सीसेट को एक यूज टू हो जाओ और वही 2 से 4 में आपका जब पेपर होता है वो टाइम स्लॉट और वो
एक सिमुलेट कर लेना एनवायरमेंट, तो वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में। आप मुझे लगता है डेली सीसेट सॉल्व करो। जीएस इतना पढ़ लेते, इतना रिवीजन कर लेते, लेकिन एक लेवल के ऊपर जीएस में नंबर लाना बहुत मुश्किल है। बट इफ यू प्रैक्टिस वेल फॉर सीसेट, आई थिंक यू कैन इजिली क्रैक सीसेट। मेंशन अ बेसिक बुक फॉर हिस्ट्री, 3 old NCERTs: Ancient India by R.S. Sharma, Medieval India by S. Satish Chandra, and Modern India by Bipin Chandra, and Art and Culture by Nitin Singhania sir. Yes सर, प्री के लिए हेल्प करो प्लीज। जो भी प्रीलिम अभी दे रहा है, डेली थोड़े बहुत दो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की आदत करो, और सीसेट को 2-3 घंटे देना शुरू कर दो, बिकॉज योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, सो दैट इन दैट वे यू विल एबल टू channelize your energy on the D-Day. बुक्स फॉर एथिक्स क्रॉनिकल का एक लेक्सिकॉन है, वो पढ़ सकते हो। आज बुक्स तो एथिक्स के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा पढ़ने चाहिए, लेकिन जो भी एक बुक पढ़ लो, उसके बाद बस करंट मटेरियल आपको कलेक्ट करना है। यस, आई एम स्पीकिंग बायलिंगुअल बिकॉज सब लोग हिंदी इंग्लिश जानते हैं, तो यस please adjust it. I will be speaking in mixed language. English literature is optional. Yes, civil engineering optional books, I do not know actually, it's a very specialized subject, but so many toppers will put, those people who are having civil engineering optional, they will put, see now Google itself is a big, big library for everyone, so focus on Google. आपको जो चाहिए वो everything is available on Google. Telugu medium is good or bad, it totally depends on your linguistic ability, articulation, if you are able to articulate properly, because this regional language के साथ एक दिक्कत है कि you will not get a good study material available, that is the issue. Otherwise any regional language is not a issue, because if मैं मराठी हूँ, if I study in Marathi, I write in Marathi, I will be far better. But the thing is that content, like we don't have like parallel for Lakshmikant or Spectrum in Marathi, so I think somehow quality of study material is a issue in regional medium, whether it is Marathi or Telugu or Tamil. Answer writing strategy, I used to join test series before mains, so because of that I will write 10-12 tests. Because of that, whatever answer I will practice, that will help in getting good score. Which books are best for beginner? NCERTs. Sriram IAS is good. My anthropology strategy I have explained you, right? Start with general anthropology by Nadim Hasnin sir, then Ember and Ember, then P. Nath for physical anthropology, then for writing practice Vivek Basme sir's book, then in order to make your answer more concise, Akshay Jain sir book is there. So resources are plenty. Braintree notes are good for some topics, then M. Reddy sir's notes are good for some topics. तो आपको देखना anthropology strategy I will write in depth after some time. प्रिपरेशन हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, डजंट मैटर, आपको बस समझ में आना चाहिए कंटेंट। सीसेट के कंपोनेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे पेपर, ऐसे के लिए आप राइटिंग बहुत सिंपल रखना चाहिए, नो यूज ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज, बट आपकी क्लैरिटी दिखनी चाहिए ऐसे से। और आप जो भी 2 पैराग्राफ लिखो उसमें कनेक्शन, एग्जाम के लिए बेस्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। आफ्टर 12 विच डिग्री इज बेस्ट? ऑल डिग्रीज आर गुड। इंजीनियरिंग के बाद आपको जॉब भी मिल जाता है, आप एक बैकअप भी रह जाता है, लाइक दोज आर लाइक कमिटेड फॉर सिविल सर्विसेज, दे कैन गो फॉर आर्ट आल्सो, बट आपको प्रोज एंड कॉन्स है। एनसीईआरटीज आर द बेडरॉक फॉर प्रिपरेशन, तो वो फाउंडेशन बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प कर लेता है। आई थिंक आई हैव हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम दे रहे प्रीलिम के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट, और बाद में बाकी वी कैन प्लान अ बिग लाइक सेपरेट सेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी। विच ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इज? फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप शुरू कर सकते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में आपको बिल्डअप करने पड़ेगा टेम्पो। मैथ्स इज अ गुड ऑप्शनल। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर प्लस 1 करंट अफेयर बुकलेट ऑफ विजन, IAS, GS, कोई भी हो,
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए बेसिक एनसीईआरटीज बहुत अच्छे, और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग्स बुक इज गुड. मैथमेटिक्स आई एम नॉट श्योर, यू विल गेट ब्लॉग ऑन मैथमेटिक्स. इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अगेन you will specialize people will be there, they will guide you. करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स आप PT 365 रिवाइज कर लो. Yes, anthropology is good option at least till now. Every optional is good, every optional is bad depending upon your preparation level. So thank you guys so much for your questions. I hope I have addressed most of the questions. बाकी जब होगा तो from time and time again we will have some sessions, right? So thank you so much everyone.